Does Yog Guru Baba Ramdev's Patanjali Yogpeeth actually manufacture a medicine that helps a woman produce a baby boy? That's a very serious allegation that was leveled on the floor of the House by JDU leader KC Tyagi, and there was uproar in Parliament. JP Nadda, the Union Health Minister, promised an inquiry. Jaya Bachchan, Member of Parliament, actually carried that packet to the Health Minister. Now the Baba has hit back. He says this is a malicious campaign against Ayurveda. There is no truth in the allegation that KC Tyagi has leveled. There's an intense face-off, and in a short while I'll be joined by Yog Guru Baba Ramdev and KC Tyagi for that face-off. But before that, let's take a look at this ground report. An Ayurvedic concoction, alleged promise to guarantee a male child, clarifying that his Ayurvedic pill merely helps childless couple conceive and doesn't guarantee a male child as alleged. He asserted the term Putra Jiva comes from a herb whose botanical name is Putranjiva roxburghi. इसका हिंदी नाम भी पुत्र जीवक है, पुत्र जीवा है। इसका गुजराती नाम भी पुत्र जीवक है, कन्नड़ नाम भी पुत्र जीवा है और तेलुगु नाम भी, सारे नाम, मराठी नाम भी पुत्र जीवा है। अब नेपाली नाम भी पुत्रन जीवा, बंगाली नाम भी पुत्रन जीवा। अब हम क्या करें भाई? As the yoga guru claimed a conspiracy to malign Ayurveda, the centre and Haryana government ordered a probe. अब इसका कोई और जांच या कोई विश्लेषण ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं और उसके कारण से कोई अन्यथा बात होगी तो उसको जांच अवश्य होगी। But Ramdev's detractors were unimpressed, asking the yoga guru to rename his pills and shed the male child stigma. हमारा कहना है कि इसका नाम संतान बीजक जीवक बीज रखा जाए ताकि लड़के लड़की के बीच में भेदभाव समाप्त हो। While Ramdev has denied allegations, the skewed sex ratio in India makes the charges against him specially grave. Bureau Report, Headlines Today. Yog Guru Baba Ramdev is in the eye of a storm, this time for this product sold at the Divya Yog pharmacy. It's called Divya Putra Jivak Bij. The allegation is Baba Ramdev is selling a product which tells gullible people that you eat this medicine and a son will be born. JDU leader KC Tyagi has said on the floor of the House what Baba Ramdev is doing is wrong. Baba Ramdev is brand ambassador for Haryana for Beti Bachao and he's roped in the Prime Minister. प्रधानमंत्री बेटी बचाओ कहते हैं और योग गुरु बाबा रामदेव बात करते हैं पुत्र के जन्म की. And joining me now on the debate at this point of time is Yog Guru Baba Ramdev and JDU leader KC Tyagi. Baba Ramdev, गंभीर आरोप है आप पर कि ये दवा भोले भाले लोग खरीदते हैं, गुमराह होते हैं कि आप बेटा पैदा करने की दवा बेच रहे हैं. देखिए, ये गलतफहमी आदरणीय केसी त्यागी जी से, क्योंकि अभी आज तक पर भी बात हो चुकी है और चैनलों पर भी, केसी त्यागी जी को पुत्र जीवक के बारे में सही जानकारी न होने के कारण से जो मैंने अभी तक महसूस किया है जी, उन्होंने जानबूझ करके नहीं, अनजाने में ऐसा संसद में बोला कि इससे बेटी पैदा होती है, नहीं होती, इससे बेटा पैदा होता है और इससे लिंगानुपात बिगड़ेगा। ये बहुत भयंकर चिंता का विषय, ये उनका मुद्दा था। जबकि ऐसा ना तो इस दवाई पर कहीं लिखा है ना इसके, अब नाम जहां तक है, अब बात एक होता नाम, एक होता है उसका इफेक्ट, उसका रेफरेंस, एक उसका यूटिलाइज। अब नाम से भ्रांति तो नामों से तो बहुतों से भ्रांति होती है, लेकिन इससे तो गंभीर भ्रांति होती है, गंभीर भ्रांति। बाबा शब्द का प्रयोग आता है पुत्र जीवक बीज, पुत्र जीवक यानी पुत्र जन्मेगा ऐसा बीज है, ऐसी दवा आप खिला रहे हैं। गांव के भोले भाले लोग तो यही समझेंगे बाबा, आखिर है क्या ये दवा? ऐसा देखो ये इनफर्टिलिटी के लिए दवा है। माताओं बहनों को यूट्रस ओवरी में कोई प्रॉब्लम होता है, उनको ओवम पूरा, अंडा पूरा नहीं बनता, उसके लिए औषधि है। शिवलिंग पुत्र जीवक इसके लिए खाए जाते हैं। दूसरी बात, संस्कृत के नाम रखने की एक परंपरा है, उसमें शिवलिंगी एक है। ऐसे आपको सैकड़ों नाम मिलेंगे, उसमें गोदंती मिलेगा, गोदंती का मतलब गाय का दांत नहीं, उसमें गोक्षुर मिलेगा, गाय का खुर नहीं।
सर्पगंध मिलेगा उसमें सांप नहीं, अश्वगंधा मिलेगा उसमें घोड़ा नहीं, यही सवाल पूछता हूं मैं केसी त्यागी जी से। केसी त्यागी जी, आप पर गंभीर आरोप बाबा रामदेव लगा रहे हैं कि आपको ना आयुर्वेद का ज्ञान है ना संस्कृत का ज्ञान है, और इससे आप भ्रांति और फैला रहे हैं, यह आयुर्वेद के खिलाफ है। त्यागी जी। नहीं, मुझे ही नहीं, मैं तो संसद तक पहुंच गया गांव से। इस देश की 80-85% जनता को यह पता नहीं है जो मुझे पता नहीं है। उस जनता को भी संस्कृत का पता नहीं। वो शहर में जाती है, वहां जो औरतें जाती हैं, पुरुष जाते हैं, पूछते हैं बच्चे की पैदा करने की जो ख्वाहिश है, खासतौर से जो मेल बेबी की है, वो पूरे समाज का इस समय रोग बना हुआ है और वो ठगे जाते हैं, उनकी लुटाई होती है। और ऐसे हजारों संस्थान देश में खुले हुए हैं जो कहते हैं कि मेल बेबी पैदा होगा। अगर मुझे संस्कृत के शब्दों की जानकारी नहीं है तो मैं इसमें शर्मिंदा नहीं हूं। गांव का गरीब आदमी इन्हीं पुत्र जीवक बीजों के चक्कर में फंसता है। और मेरा खाली ऐतराज इतना भर है और था कि एक राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद अगर पुत्र जीवक बीज उनकी संस्था के जरिए बिकता है तो इससे डिस्प्रपोर्शनेट जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। मुझे प्रसन्नता है। अच्छा, एक बात बताइए त्यागी जी, जब नीतीश कुमार जी की सरकार में आपने बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तब भी ये पुत्र बीजक बीज का उत्पादन होता था, तब भी बाबा रामदेव का पतंजलि योगपीठ से बनाता था, तब आपको आपत्ति नहीं हुई। अब आपको आपत्ति हो रही है, क्या इसलिए क्योंकि आप वजीर को नहीं पकड़ पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए आप एक फकीर को निशाना बना रहे हैं? ऐसा बाबा रामदेव का आरोप है। रामदेव जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विरोध करने के लिए कोई बहुत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मैं ऐसा नहीं मानता। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश है, किसानों की बिगड़ती हुई हालत है ना, जितने वायदे चुनाव में किए गए थे उसके लिए हम और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी रोज लड़ते हैं। उसके लिए हमें इन्हें मोहरा बनाने की या इन्हें इस्तेमाल करने की या फकीर के जरिए वजीर तक पहुंचने की हमें उसका कोई स्कैपगेट किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब संसद में चर्चा हुई थी तो किसी ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई टीका टिप्पणी इस मामले को लेकर नहीं की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पानीपत से एक अच्छी शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। ये मेरा वक्तव्य है, क्योंकि प्राइम मूवर मैं ही था, इसलिए मैंने बहुत साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आह्वान किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। अभी आप बाबा रामदेव को निशाना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब वो आपके ब्रांड एम्बेसडर थे, ये दवा तो तब भी बनती थी। तब ये संज्ञान में नहीं आई, संज्ञान में आई होती हम तब भी कहते। तो अब जब बाबा रामदेव आपसे कह रहे हैं कि ये पुत्र उत्पत्ति के लिए नहीं है, तो क्या आप अपनी गलती मानते हैं? मैं गलती कुछ नहीं की, मैं अपनी बात पे स्टैंड कर रहा हूं। ये कोई भी बिना पढ़ा लिखा आदमी जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, पुत्र जीवक बीज को क्या समझेगा? वो शहर में आता है इसी इन चीजों की तलाश में। बिना पढ़ा लिखा आदमी कोई बात कहे त्यागी जी, उसकी बात समझ में आती है। आप तो पढ़े लिखे थे ना, तो आपको पूरा तथ्य रखना चाहिए था। आपने अर्ध सत्य रखा या भ्रांत सत्य रखा। कहना चाहता हूं, इसने देखो संतति जीवक बीज क्यों नहीं रखा? नहीं, लेकिन बाबा रामदेव जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि आपने आधी अधूरी जानकारी पर बाबा रामदेव को और इस दवा को निशाना बनाया। क्या आप ये बात मानते हैं? आधी अधूरी जानकारी पर? हाँ, नहीं मानता पूरा। मैं नहीं मानता। देखो, अब ना माने तो अलग बात। सभी सांसदों ने होशो हवास में, अब सभी सांसदों को क्यों ले रहे हैं आप? इस प्रोजेक्ट इसमें के 542 सांसदों को अपने साथ मत जोड़िए केसी त्यागी जी। देखो, आप, मैंने पहले भी कहा है और अभी दोबारा, क्योंकि ये जो है टीवी टुडे नेटवर्क का दूसरा चैनल है, पहली बहस को आगे बढ़ाइए। और आपने उसमें आपने भी माना, मैंने कहा कि नाम रखने की एक परंपरा है। संस्कृत में पुत्र और पुत्री दोनों के लिए एक शब्द आता है। हम आयुष डिपार्टमें को लिखेंगे और हम बाबा रामदेव, लेकिन एक चीज आप बताइए, क्या आप मानते हैं कि बदलते हुए परिवेश में आपकी इस दवा के नाम से ये गलत भ्रांति फैल रही है और आपको ये नाम बदल देना चाहिए? तो मैंने तो कहा, अभी मैंने आज तक पर इस बात को तो कहा। आप क्या ये नाम बदलेंगे? क्या आप हेडलाइंस टुडे से कह रहे हैं कि आप ये नाम बदलेंगे बाबा रामदेव? हेडलाइंस टुडे पर दोबारा दोहरा रहा हूं आज तक वाली बात को। हम आयुष मंत्रालय को लिखेंगे, हम जो है पूरे यह गवर्नमेंट के जो लाइसेंस अथॉरिटी है उसको भी लिखेंगे कि भैया आप फिर ये केवल पतंजलि योगपीठ की तरफ से नहीं,
ये केवल दिव्य फार्मेसी की तरफ से नहीं, हम पूरे आयुर्वेद की तरफ से इस बात को कह रहे हैं कि ये भ्रांति फैल रही है, तो इसका निराकरण करने के लिए एक सबके लिए समाधान हो जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से बात रखी गई, वो बात का तरीका आदरणीय केसी त्यागी जी का, चाहे कोई इनकी मनसा गलत ना हो, लेकिन इन्होंने अर्ध सत्य रखा, अनजाने में भी झूठ तो बोला गया ना इनसे। केसी त्यागी, क्या इस बात में त्यागी जी सच्चाई है कि आप बाबा रामदेव के जो बढ़ती पॉपुलैरिटी है, तथ्य रखना, ठीक है, क्या ये संसद का या संविधान का अपमान नहीं है? जवाब दीजिए त्यागी जी, आपने आधे ज्ञान में जो बात कही, क्या ये संसद का अपमान नहीं है? बाबा रामदेव पूछ रहे हैं। बाबा रामदेव इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। बाबा रामदेव, जिस देश में, और हरियाणा की अगर खासतौर पर बात करें, जिस राज्य में हर 1000 पुरुष बच्चों के लिए मेल चाइल्ड के लिए केवल 861 लड़कियां हैं, ऐसे राज्य में जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्या इस तरह की दवाई से गलत संदेश नहीं जाता है? देखिए, मैंने कहा नाम से भ्रांति हो रही थी, उसका स्पष्टीकरण हम दे चुके हैं। आगे उसके लेबल पर भी हमने कहा हम उसका स्पष्टीकरण छाप देंगे। हमने कहा हम आयुष मंत्रालय को भी लिखेंगे। मंत्रालय यदि नाम चेंज करते हैं तो हमको आपत्ति क्या है? बात यह है, ये इसके पीछे का मकसद ठीक नहीं था। क्या मकसद है आपके हिसाब से बाबा रामदेव? क्या मकसद है कि पहले पत्रकार सारे नाम पुल्लिंग में रखे गए? आम आदमी पार्टी, अब कोई कहे कि आम औरत पार्टी क्यों नहीं रखी? औरतें तो वोट ही नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को। ये अब ऐसी गलत भ्रांति फैला करके हम अपना उल्लू सीधा करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन है ये लोग और क्यों कर रहे हैं ऐसे? का ठीक ज्ञान होना। आप कह रहे हैं क्या आप ये कह रहे हैं कि ये आपके खिलाफ एक साजिश है? बाबा रामदेव, क्या आपके खिलाफ साजिश हो रही है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि बार बार योग को, आयुर्वेद को, बाबा रामदेव को, ये इन चीजों को निशाना बनाने से लाभ क्या है? मैंने कहा ना, जब मुझे बिहार का ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय नीतीश जी ने बनाया तब बाबा ठीक था। जब वृंदा कारत ने जो है आयुर्वेद पर अटैक किया तब सब खड़े हो गए, तब बाबा ठीक था। अब बाबा में क्या खोट आ गया? न मैं आज एमएलए हूं, ना एमपी हूं, ना सीएम है, ना पीएम हूं, न मैंने कोई पुरस्कार लिया, ना कोई होदा लिया, ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर हूं। मैं हमेशा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस के लिए लड़ा हूं। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की तर्क और वैज्ञानिक सम्मत बात की है। मैंने कभी भी कोई पाखंड का समर्थन नहीं किया। मैंने कभी भी बेटी बढ़ाओ का अभियान नहीं चलाया। लेकिन बाबा रामदेव, में कोई क्या वजह है कि आपको लगातार ये एक परंपरा थी, बोटनिकल नाम इसका पुत्रंजीवा जो है मैं क्या करूं जी? अब इसको नाम को बदलने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक, कौन आपके खिलाफ साजिश रच रहा है? अगर आपको लग रहा है कि बड़े बड़े लोग, चाहे वो सांसद हो, अलग अलग पार्टियों के हो, आपको निशाना बना रहे हैं लगातार, कौन है ये लोग और क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब देखो भैया, आप जो है गौरव जी सब जानते हैं, हमने तो योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। गौरव भाई, हम वो काम करते रहेंगे। विरोध करने वाले विरोध करें, हम पूरी प्रामाणिकता से, निस्वार्थ भाव से इस काम को करेंगे। हमारा औषधि वाला भी जो कार्य है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट से 100% चैरिटी, ये काम हमारा कमाई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए। कितना पैसा कमा रहे हैं आप इससे? बाबा, आप पर आरोप ये लग रहा है कि इस तरह आप लोगों को बरगला के पैसा कमा रहे हैं, दिव्य पुत्र जीवक बीज जैसी दवा बेचकर, गुमराह कर। क्या इस बात में 17 लाख की पूरे साल में दवाई बिकी है, 17,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 17,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए हम ये काम करेंगे क्या? 17,000 का प्रॉफिट, ये फालतू की बात है कि बाबा इससे कोई कमाई कर रहा है। ये 30 रुपए की दवाई है, 2-3 रुपए का भी इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। 10% प्रॉफिट मानो तो 17,000 का प्रॉफिट होगा। कहीं कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है। कोई जो है किसी तरह का इसके अंदर कोई जो है बिजनेस का मकसद नहीं है। हमने कहा अरे हमारा 1 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं जी, हमारा आयुर्वेद का सारा काम, मैंने कहा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड 100% चैरिटी प्रॉफिट से, यही मकसद है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद योग गुरु बाबा रामदेव, बाकी तो सारी बात कही, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन हेडलाइंस टुडे, योग गुरु बाबा रामदेव सेइंग दैट ही विल राइट टू द health ministry to change the name of this medicine from Putra Jeevak Beej to something that will not be misleading.